تو آغاز میں ہی آج کے اہم میچ کی بات کرتے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ، جو کہ نیوزی لینڈ کھیل چکا ہے۔ 401 رنز بنائے ہیں نیوزی لینڈ نے اور اب پاکستان کی بیٹنگ اس وقت جاری ہے۔ چھٹا اوور چل رہا ہے، 31 رنز بنا چکا ہے پاکستان اور 1 وکٹ بھی گوا چکا ہے۔ بابر جنہوں نے 8 رنز بنائے ہیں اور فخر زمان جنہوں نے 18 رنز بنا لیے ہیں۔ تو یہ چھٹا اوور جاری ہے۔ عبداللہ شفیق جو کہ اس سے پہلے آؤٹ ہو گئے تھے اور ان کی جگہ بابر اس وقت کھیل رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے آسٹریلیا نے پاکستانی بالنگ کو ایکسپوز کیا تھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ نے بھی پاکستانی بالنگ کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنا غلط تھی؟ نیوزی لینڈ نے 402 رنز کا ہدف دیا۔ رچن رویندرا نے ورلڈ کپ میں تیسری سینچری بھی بنا ڈالی۔ تو اس میچ کو لے کر یہ کہا جا رہا تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ڈو اور ڈائی میچ ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستانی بالرز کی بڑی تعریفیں کی جاتی تھی کہ پاکستانی بالنگ بڑی کمال ہے، لیکن ان میچ میں اس سے پہلے آسٹریلیا کے میچ میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستانی بالرز نے رنز کی لوٹ سیل لگا دی تھی اور نے کافی بڑا ہدف دیا ہے۔ 402 رنز کا ہدف دیا گیا ہے پاکستان کو۔ شائقین کرکٹ بنگلورو میں کیا کہتے ہیں؟ نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ان کے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے۔ 2 رنز بہت بڑا اسکور ہو گیا۔ نیوزی لینڈ نے 401 رن 6 وکٹ پہ بنائے۔ 108 رچن رویندرا نے، 95 کین ولیمسن نے اور پھر ایک لڑی پڑی رنز کی 90 رنز بنے شاہین شاہ افریدی پر، 85 رنز پڑے حارث رؤف پر، اور یہ دونوں ورسٹ ایور فیگر ہیں ورلڈ کپ کے کسی بھی پاکستانی بالر کے۔ کوئی چانس لگ رہا ہے پاکستان کا؟ پاکستان کو تو کچھ چانس نہیں ہے۔ میرا سجیشن یہ ہے کہ وہ اچھا کھیلے اور آرام سے کر لے۔ بہت پرانی قسم کی کرکٹ کھیل رہا ہے پاکستان، ڈیفینسو، اور دھنائی کر دی نیوزی لینڈ کے بیٹسمینوں نے، نیچے والے بیٹسمینوں نے۔ آخری 10 اوور میں 94، آخری 5 میں 57، بہت بڑا اسکور کر دیا۔ پاکستان کو اپنی کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی۔ بارش آتی ہے تو 20 اوور میں پاکستان کو 204 رنز کا ٹارگٹ مل سکتا ہے، وہ کچھ شاید پاکستان اچیو کر لے۔ تو اس تمام تر صورتحال پہ ہمارے جو اینالسٹ ہیں ان کی جانب سے بھی تجزیے دیے گئے اور کہا گیا، باسط علی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کپتانی مایوس کن رہی، قومی ٹیم کے انڈر 13 کی کرکٹ کھیل رہی ہے۔ انہوں نے ARY نیوز کی ورلڈ کپ ٹرانسمیشن میں گرین شرٹس پر تنقید کی، جبکہ کامران اکمل نے کہا مینجمنٹ میں موجود لوگ سائنسدان زیادہ لگتے ہیں۔ اظہر علی بولے بالرز نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ نے ٹاس جیت کے بالنگ کری، وہ تو چیز آپ نے امپلیمنٹ ہی نہیں کری۔ نیا بالنگ یہاں کرانا چاہیے تھا افتخار سے۔ بنگلہ دیش کے اگینسٹ آپ بالنگ کرا رہے نیا بال، اور یہاں نہیں کرا رہے۔ کیپٹنسی بہت خراب ہوئی۔ انڈر 13 کے بچوں کا میچ ہو رہا ہے کیا؟ ٹیم مینجمنٹ زیادہ سمجھدار ہے، سارے سائنسدان ہی لگتے ہیں مجھے۔ کرکٹ کھلانے نہیں آئے وہاں پہ، صرف باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح پرفارمنس دیکھے تو جسٹیفائی تو آپ کسی چیز کو بھی نہیں کر سکتے۔ 4 فاسٹ بولر کھلائے ہیں تو 4 فاسٹ بولر کتنے رن دے رہے ہیں؟ آپ نے جس پہ ایڈوانٹیج اٹھانا تھا، اپوزیشن کو آرام سے کھیلنے دیے اس میں۔ تو جناب یہ تو تھی اب تک کی سپورٹ سے ریلیٹڈ کچھ اہم خبریں۔ اب دیگر خبریں شامل کریں گے اور نیوز روم سے آپ کو معذرت کے ساتھ اسٹوڈیو سے آپ کو جوائن کریں گی شائستہ اور آمنہ۔ اوور ٹو یو شائستہ نام۔ تھینک یو ماہنور، اور کچھ شامل کریں گے اہم خبریں کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک 6 سے، جہاں کچرا کنڈی سے 3 نوزائیدہ بچوں کی لاشیں ملی ہیں۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے لاشوں کو ایک شاپر میں ڈال کر کچرا کنڈی میں دبایا گیا تھا۔ کیا تفصیلات ہیں نذیر شاہ سے جانتے ہیں۔ نذیر، کیا معاملہ ہے یہ؟ بالکل دیکھیں، نارتھ ناظم آباد کا علاقہ بلاک 6 جہاں فاروق اعظم مسجد کے قریب ایک کچرا کنڈی ہے، جہاں سے 3 بوتلوں کے اندر 3 نومولود بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور ریسکیو ٹیم نے کچرا کنڈی سے ان لاشوں کو نکال کر تھانے منتقل کر دیا ہے، جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان بچوں کی عمر 1 ماہ کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ اس کو پہلے ایک شاپر میں ڈال کر کچرا کنڈی میں دبایا گیا تھا، اس کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دی گئی تھی، جس کے بعد ایک علاقہ مکی کی جانب سے ریسکیو اور پولیس کو اطلاع دی گئی، اور اب پولیس کی جانب سے اس پر باقاعدہ ایک مقدمہ درج کرایا جائے گا اور یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس شخص نے یہ کیا، اور اس پر باقاعدہ FIR درج کی جائے گی۔ جی شکریہ نذیر شاہ۔ اور آپ کو بتائیں کہ میاں والی میں پاک ایئر فورس ٹریننگ بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی میں دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا۔ کامبنگ اور کلیئرنس آپریشن میں تمام 9 دہشت گرد مارے گئے۔ حملے میں دفاعی اثاثے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور جوابی کارروائی نے پاکستان ایئر فورس ٹریننگ بیس میاں والی پر حملہ ناکام بنا دیا۔ کامبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن میں تمام 9 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گردوں نے الصبح حملہ کیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے غیر معمولی جرات اور بروقت جوابی کارروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو بیس میں داخل ہونے سے روکا اور ہلاک کر دیا۔ دیگر دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے محدود کیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران
दौरान तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के बाद मुल्हिका इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। पाक फजाइया के किसी ऑपरेशनल असासे को दहशतगर्द कार्रवाई में नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में पहले से मतरूक करार देकर फेज आउट किए जाने वाले 3 तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की फौरी और मौसर कार्रवाई अमन दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। मादरे वतन के दिफा के लिए हमा वक्त चौकस और तैयार हैं। पाकिस्तान में दुश्मन मुल्क टारगेटेड पर किसी वॉर में मुलव्वस है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली कहते हैं भारतीय एजेंसी रा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। वो कोई कलाम नहीं है कि ये जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं इसके पीछे एक प्रॉपर मुनज़्ज़म टारगेटेड प्रॉक्सी वॉरफेयर है। भारत की जो एजेंसी है रॉ वो उसने तो दे मेड नो बॉन्ड्स अबाउट देयर इंटेंशन टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, और वो शिद्दत इसी वजह से आई है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी क्लियर कंसिस्टेंट पॉलिसी अडॉप्ट की है कि इनकी नेटवर्क को हमने जड़ से उखाड़ना है। अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बड़ी रेगुलरली हो रहे हैं। जो फोर्सेस हैं हमारी साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहाँ एक्टिव ऑपरेशंस जारी हैं। पाक फौज की हिम्मत और अज़्म को सलाम। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया कि मियांवाली में दहशतगर्दी के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया गया। पाक फ़िज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। सदर मुमलिकत ने मियांवाली में ट्रेनिंग एयरबेस पर हमले की मजम्मत की और दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर इज़हार इत्मीनान किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों के मंसूबे को खाक पे मिला दिया। बिलावल भुट्टो ने सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। बयान में कहा कि दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का ट्वीट, लिखते हैं दहशतगर्दों के नाम अलग जरूर होंगे लेकिन पसे पर्दा दुश्मन एक ही है। पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, अवाम की जान और माल की हिफाजत पर मामूर 14 फौजी जवान शहीद हो गए। फौजी मुकाबला पसनी और औरमाड़ा में जारी था। गवादर के इलाके पसनी में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 14 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सिविल और हाजिर सर्विस अस्करी हुकाम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहदा के जस्ते खाकी उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए हैं, जहां उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गवादर के इलाके पस्ती में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 14 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा पस्ती में अदा कर दी गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी को पुलिस एहलकार घर से गिरफ्तार करके ले गए। फैसल चौधरी के मुताबिक फवाद चौधरी को कहां मुंतकिल किया गया कुछ नहीं मालूम। फवाद चौधरी की अहलिया ने भी शौहर की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तफसीलात क्या है जानेंगे फारूक इजाज से। जी फारूक बताएगा। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में और कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने उठा लिया है। फवाद चौधरी किसी भी मुकदमे में मतलूब नहीं है। इसके अलावा दरख्वास्त में ये कहा गया है कि फवाद चौधरी गैर कानूनी कैद में है और फवाद चौधरी की बाजियाबी इस अदालत के दायरा इख्तियार में है। मुलवी को गैर कानूनी हिरासत से आज़ाद न करवाया गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। अहमद शहजाद गोंदल जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से इस दरख्वास्त पर समाअत की गई है और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। जी ठीक है, फारूक इजाज इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा को 1 हफ्ते के अंदर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को थाना बनीगाला इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश किया गया।
SHO थाना बनीगाला अशफाक वड़ाइच ने मौक़िफ़ अपनाया कि असद कैसर को करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया है। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाए ताकि एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके असद कैसर को अपनी तहवील में ले सके। असद कैसर के वकील शुएब शाहीन ने कहा, किसी और के मुकदमे में गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया? कल इलेक्शन का ऐलान हुआ और असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शुएब शाहीन ने अदालत से इस्तदा की असद कैसर को रिहा किया जाए। ATC लाहौर में कलमा चौक में कंटेनर जलाने के केस की समाअत अदालत ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 15 नवंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने एजाज चौधरी और दीगर मुल्जिमान ट्रायल के लिए नोटिस जारी कर दिए। और खबर देंगे आपको, एंटी करप्शन रावलपिंडी ने फवाद चौधरी को 6 नवंबर को दिन 11 बजे तलब कर लिया है। फवाद चौधरी को एंटी करप्शन की जानिब से तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। तफसीलात क्या हैं, बाबर मलिक से जानते हैं। बाबर, बताइए। PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी को एंटी करप्शन की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इख्तियारात से तजावुज करके का इस्तेमाल किया गया और तजावुज करके हाउसिंग सोसाइटियों को सरकारी जमीनों पर कब्जे का इन पर इल्जाम है। अदम तामील पर फवाद चौधरी के खिलाफ 172 और 174 के तहत कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी। कहा गया है एंटी करप्शन की जानिब से कि ये नोटिस जो है जेएलएन के मकामी ऑफिसर जो है इसको फौरी तामील करवाएं और इनकी हाजिरी को यकीनी बनाएं। जी, बहुत शुक्रिया बाबर मलिक। एक और अहम खबर देंगे आपको, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया है। नैब तरामीम केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। बताते चले कि चेयरमैन PTI नैब तरामीम केस में मरकजी दरख्वास्त गुजार है। तफसीलात क्या है, जानेंगे राजा मोहसिन एजाज से। जी राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अदालत में पेश होने का मौका फराहम किया है। नैब तरामीम केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें चेयरमैन PTI मरकजी दरख्वास्त गुजार हैं। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि अदालत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करती है और अदालती हुक्म की नकल अडियाला जेल में कैद चेयरमैन PTI को पहुंचाई जाए। अगर PTI चेयरमैन अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुप्रिटेंडेंट इंतजाम करें। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले से मशरूत है। अटॉर्नी जनरल और तमाम जो सूबाई एडवोकेट जनरल हैं उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है, जबकि चेयरमैन PTI को नोटिस जेल सुप्रिटेंडेंट के जरिए भेजा जाएगा। अदालत की जानिब से ये जो हुक्मनामा है ये 31 अक्टूबर की समाअत का है, जिसकी चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी। और ये इस फैसले के मुताबिक अगर चेयरमैन PTI सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी चाहते हैं तो जेल सुप्रिटेंडेंट इस हवाले से इंतजाम को यकीनी बनाएं। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल ने इसाक डार की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसाक डार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतालिका उमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। जो वजीर आजम बनने के लिए वोट लेने आएगा उससे वजारत नहीं आईनी तरमीम का कहेंगे। अगर इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक मुंतकिल करने की बात नहीं होगी तो किसी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। MKM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद मुल्क को जितना नुकसान पहुंचा उतना आज तक नहीं हुआ। मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 3 नवंबर को 12,540 गैर कानूनी गैर मुल्की अपने वतन वापस चले गए। अब तक 1,75,019 गैर कानूनी गैर मुल्की जा चुके हैं। क्वेटा और चमन बॉर्डर पर ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों का कहना है, हमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई तकलीफ नहीं है, हम अपनी खुशी से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। उधर खैबर लंडी कोतल से गैर कानूनी मुकीम 9,000 अफगान खानदान मुल्क वापस चले गए। इंतजामिया के मुताबिक वापस जाने वालों के पास कोई कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। मजीद बता रहे हैं खैबर से हमारे नुमाइंदे रऊफ आफरीदी। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को दी जाने वाली डेडलाइन के खात्मे के बाद मुल्क के मुख्तलिफ अफगान शहरी खैबर के रास्ते पाक अफगान बॉर्डर तोरहम क्रॉस कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 9,000 से जायद फैमिली जो है वो अपने वतन को वापस जा चुकी हैं। उनका ये कहना है कि वापस जाने वाले अफगान शहरियों को मजीद मोहलत दी जाए। रास्ते में मुख्तलिफ समाजी फलाई तंजीमें इन अफगान शहरियों की खिदमत के लिए कोशां हैं, वो इन्हें
खुराकी अशिया, अद्वियात और मुख्तलिफ किस्म की अशिया जो है वो फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी है। चमन पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती के जरिए 52,000 से जायद अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से। जी अख्तर गुलफाम। पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती के करीब मौजूद मेरे आकर में देख सकते हैं कि यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में जो अफगान शहरी है वो बाब दोस्ती क्रॉस करने के मुंतजर है। डिप्टी कमिश्नर राजा अतर अब्बास के मुताबिक 52,000 से ज्यादा अफगान शहरी इस वक्त वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। दूसरी जानब चमन के मुखीर आजाद की जानब से इन वापस जाने वाले अफगान शहरियों को सुबह दोपहर रात का खाना दिया जा रहा है और इस वक्त 3 जगह पर जो है वो इमदादी कैंप जो है वो लगाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 800 से ज्यादा जो ओपीडीज है वो किए गए हैं और सैकड़ों अफगान शहरी जिनको मुख्तलिफ बीमारियां लायक थी उनका इलाज मुआलजा करके इनको मुफ्त अद्वियात फराहम की गई है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची के कस्बा मोड़ पर मोटरसाइकिल टैंकर की जद में आ गया। हादसे में मां और 7 माह का बेटा जाँ बहक और शौहर शदीद जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवारों को कुचलने के बाद टैंकर पोल से टकराया जिससे ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया। वजीर आला ने कहा घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाई ओवर मनसूबे पर दिन रात काम जारी है। काम को मजीद तेज किया जाए ताकि मनसूबा जल्द मुकम्मल हो सके। मनसूबा मुकम्मल होने से शहरियों को आमद रफ्त में सहूलत और आसानी मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।